Hello, everybody. So, this session is about one of the important topics, concept that is DHCP relay agent. Okay, so it is one of the widely used concept, guys. Nowadays in the company, even in my current company, we are using this concept. Every company use this concept like DHCP relay agent, and it is widely asked in the interview also. Like what is DHCP relay agent and how we can use it and what is the purpose. So first, I will try to explain with the help of theory, and then we'll try to explain and show some live example with lab also, guys. Okay. So let me just take the pen. Yeah. So what is DCP relay agent, guys? So for example, let's consider this is our switch, and through switch, some PC are connected. For example, one, two, three, four. So four PCs are connected, right? And these are the part of VLAN 10, for example. And this is our DCP servers, and it is also the part of VLAN 10. Okay. And let's consider here there are some other PC, client PC are connected, right? And these are the part of VLAN 20. Okay. So because our DCP server is the part of VLAN 10, so only the client, only the PC, which is the part of VLAN 10, can get the IP address from the DHCP server because um, all the client message is going to be broadcast till VLAN 10. Okay. Because DHCP server is the part of VLAN 10 only. So जो भी broadcast message हो जाएगा guys, it is going to be only broadcast within the VLAN 10, right? I know very well everyone understand the concept of VLAN. VLAN is used for the isolation purpose, security purpose, right? So only VLAN 10 client can get the IP address from the DHCP server because DHCP server is also the part of VLAN 10, right? But what about the 20, VLAN 20 and maybe some other another computers? Another clients are connected with the same switch maybe, and these are the part of like VLAN example 30, and we want to use the same DHCP server, a same DHCP server for all the 20 and 30 billion also, 20, 30 billion client machine also. So how we can you do that? So for that, DHCP relay agent comes in the picture. So generally, what's happen, guys, in company, we generally create on switch level, we generate create SBI. For example, here we have created, for example, SBI, and here we can put we can create the SBI for the VLAN 20, and on the interface level, we can assign there is one command like IP dash helper and then address, and we can give the address of the DHCP actual DHCP server IP. For examples, let's consider it is 192.168.1.100. Okay. So what will happen, guys? If any DHCP request come to this switch, because for all the 20 people's, all sorry, all the 20 billion clients, this will act as a gateway, right? You know very well like what is the concept of SVI. So if any request come to the switch on that interface, we have defined IP helper address, and so it is going to be sent that request to that DHCP server as a unicast. Okay, so I know very well, guys, how DHCP work. You guys very much aware like how DHCP work. If you don't, I have uploaded one details and depth about DHCP on my channels, like how DHCP work, how DORA process work, like discover, offer, request, acknowledgement. So if if you're not sure about DHCP, like how DHCP work, we can go on my channels and watch that video also. Then we can come to here so that you can understand the flow. Okay. So this is how DHCP relay agent work, guys. This is how it is required in the productions. Now it is pretty much clear to everybody. अभी मुझे इतना आइडिया है कि सबको क्लियर हो गया है कि DHCP रिले एजेंट का यूज क्यों करते हैं. इन शॉर्ट में मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द लैब, गाइज. सो डीसीपी रिले एजेंट का यही एक्चुअल मीनिंग होता है कि मान के चलो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे डीसीपी सर्वर द पार्ट ऑफ VLAN 10 और VLAN 2030 मशीन को भी हमें सेम डीसीपी सर्वर से आईपी चाहिए. उस केस में हम डीसीपी रिले एजेंट का यूज करते हैं, डीसीपी रिले का यूज करते हैं. उसमें कुछ नहीं करना रहता है, गाइज. इट डिपेंड्स अपन योर डिजाइन, योर कंपनी. हम जनरली स्विच लेवल पे एसबीआई क्रिएट कर देते हैं, एंड वहां पर एसबीआई पर हम क्या करते हैं,
IP कॉन्फ़िगर करते हैं, दैट IP विल बी गेटवे फॉर द 20 and 30 30 वी कैन से लाइक मशीन विच इज द पार्ट ऑफ VLAN 20 and 30। और वही उसी इंटरफेस पर हम एक कमांड यूज करते हैं गाइज, IP हेल्पर एड्रेस, एंड IP हेल्पर एड्रेस में हम एक्चुअल DHCP सर्वर का IP देते हैं, और जब भी रिक्वेस्ट वो स्विच के पास जाएगा, इट विल सेंड टू रिक्वेस्ट टू द एक्चुअल DHCP सर्वर एज यूनिकास्ट। फिर वहां से IP मिलेगा, देन इट विल गेट बैक टू द क्लाइंट। So this is how DHCP relay agent work, guys. Okay, let's come to the lab here. So let's consider this is one of the site. Maybe let's consider this is the Mumbai site or maybe Pune site, and these are the users a part of Pune, and these users are the part of we can say like Bangalore, we can say, or Mumbai, we can say, and we have DHCP server here, like R1 is the DP server, and R1 is our DHCP server. And you want like the people coming from Bangalore side, Bangalore people can also get the IP from our we can say like Pune DHCP server. So how we can do that? So very very important, guys. First, let me just take the pen here also. Configuration is only 2-3 minutes work. Only need to understand the concept, guys, because configuration is only 2-3 minutes work. Okay, so this person is a part of we can say like our Bangalore side, and this is our DCP server, and it is a part of Pune. Let's consider it. Okay, एंड इस क्लाइंट को भी हम सोच रहे हैं कि जो भी हमारे बैंगलोर के क्लाइंट है जो ऑफिस में सीटेड है, उनको भी हमें ये पुणे का DHCP सर्वर IP मिले। एंड इट्स हैपन इन द कंपनी, गाइस, क्योंकि कभी कभी मल्टीपल DHCP सर्वर नहीं रहते, राइट। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, गाइस? पहला रिक्वायरमेंट की रीचेबिलिटी चाहिए आपको। ओके, रीचेबिलिटी चाहिए, लाइक नेटवर्क रीचेबिलिटी चाहिए, बोथ 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 साइड का। दैट इज द ओनली रीजन कि आप ये चीज़ें अचीव कर सकते हो, रीचेबिलिटी चाहिए। सेकंड, आपको क्या करना, अगर पुल डिफाइन करना पड़ेगा फॉर दैट, DCP पुल बनाना पड़ेगा यहाँ पर फॉर दैट साइट। ये मान के चलो सबनेट 172 का सबनेट है, इधर का जो मैंने सबनेट डिफाइन किया 192.161.0/24 का है, ये 172 का है। सो यहाँ पर एक पुल डिफाइन करना पड़ेगा, एंड देन हमें टेस्ट करना पड़ेगा। सो मेन यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, वी शुड कीप रिचेबिलिटी। रिचेबिलिटी चाहिए, देन ओनली वी कैन अचीव दिस रिक्वायरमेंट, अदरवाइज वी कैंट। ओके, सभी हम आते हैं यहाँ पर, गैस इसको मैं R2 पर आते हैं। अगर हम बेसिक, मैंने IP कॉन्फ़िगरेशन कर दिया था, अगर मैं पिंग करता हूँ R2 को R1 से, लेट मी जस्ट पिंग व्हाट इज द IP। सो IP इज लाइक 10.10.10.1। सो अगर मैं यहाँ पर पिंग करके देखता हूँ, गाइस रीचेबिलिटी चाहिए 10.10.10.1। सो रीचेबिलिटी है, बट फॉर आवर यू नो फॉर आवर लैब पर्पस, मैं क्या कर रहा हूँ कि EIGRP की हेल्प से मैं ये नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दे रहा हूँ दोनों राउट पर, सो दैट नेटवर्क का रिचेबिलिटी हो एक दूसरे साइड से। ठीक है, यहाँ इस दिस लैब में क्या है कि दोनों राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो रिचेबिलिटी इज देयर। बट इन कंपनी, गाइस, जनरली क्या होता है कि हम थ्रू BGP और हम राउट को एडवर्टाइज कर देते हैं थ्रू SD-WAN, डिपेंड्स अपन योर कंपनी डिजाइन। अभी मैं क्या करता हूँ, विद हेल्प ऑफ EIGRP, ये दोनों नेटवर्क को एडवर्टाइज कर देता हूँ और इधर भी एडवर्टाइज कर देता हूँ, सो दैट एक दूसरे के पास इंफॉर्मेशन रहे, एंड दोनों साइड आपस में रिचेबिलिटी रहे, एंड देन वी कैन यूज द DHCP रिले कॉन्फ़िगरेशन, गाइज। ओके, तो हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पर आते हैं, गाइज, एंड R1 पर हम आते हैं, एंड क्या करते हैं, सिंपली हम एक EIGRP एक प्रोटोकॉल रन कर देते हैं हम। राउटर राउटर EIGRP 100 ले लेता हूँ, और मैं नेटवर्क पर एडवर्टाइज कर देता हूँ। और व्हाट इज द नेटवर्क, आवर नेटवर्क इज लाइक 192.168 and 10, 192.168.1.0 255.255। एंड सेकेंड नेटवर्क क्या है, guys? अपना 10 का नेटवर्क है, 10.10.0/24 का है। परफेक्ट, सो वी हैव डन ऑन द R1, सेम थिंग वी नीड टू डू ऑन द R2 ऑल्सो, गाइज। और R2 पर भी हम एडवर्टाइज कर देते हैं। एंड व्हाट इज नेटवर्क, 172.16.1.0
/24, and another network is like 10.10.0. परफेक्ट। सो हमने क्या कर दिया गाइज? सो सो आई सो अभी देखो एक नेबर हमारा बन गया है 10.10.1 के साथ, ठीक है, सो दैट इज फाइन। हमारा ये लैब जो है नॉट फॉर ई आई जी आर पी, सो हमने ई आई जी आर पी जस्ट यूज किया टू एडवर्टाइज द राउट्स टू ईच अदर। ओके, तो अभी हमारी रीचेबिलिटी है एक दूसरे के बीच में। नाउ इट विल कम टू कॉन्फ़िगर आवर डीएचसीपी रिले पार्ट गाइज। ओके, सो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हम ये चाहते हैं कि ये जो क्लाइंट है, ये जो साइट है बेंगलोर वाला, ये भी साइट के जो क्लाइंट है, जो पीपल है जो इन साइड बैठे, उनको भी डीएचसीपी जो है हमारा पुणे का डीएचसीपी सर्वर, उससे आईपी मिले। सो वी नीड टू कम ऑन द R1 and we'll create one separate pool here guys, and we need to go on the configuration terminals and we configure IP DHCP pool, and we can give name like I'm just giving like Bangalore dash pool, and network I am just giving here 172.16.1.0, एंड उनको जो भी हमारे बेंगलोर के पीपल हैं उनको ये इस सबनेट से भी किसी लाइक इस नेटवर्क से उनको आईपी एड्रेस मिले फ्रॉम डीसीपी सर्वर। ओके, एंड मैं चाहता हूँ कि उनका जो राउटर हो वो रहे वन डिफॉल्ट गेटवे 172.16.1.0 मिले, एंड जो डीएनएस सर्वर है वो हमारा 192.168.137.1 रहा है। ओके परफेक्ट। और मैं एक आईपी को एक्सक्लूड भी करना चाहूँगा गैस, आईपी डीएचसीपी एक्सक्लूडेड एड्रेस में मैं इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ, गेटवे वाले को 172.16.1.100 को एक्सक्लूड कर देता हूँ। परफेक्ट। सो दैट इज वी हैव क्रिएटेड द पूल गाइस, हमने यहाँ पर एक पूल क्रिएट कर दिया फॉर बेंगलोर पीपल के लिए, और रीचेबिलिटी हमारे दोनों राउटर के बीच में है। सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इस इंटरफेस पर आना पड़ेगा, पास इथरनेट 0/1, और यहाँ पर हमें कमांड रन करना पड़ेगा आईपी हेल्पर एड्रेस। और आईपी हेल्पर एड्रेस में हमें क्या किसका आईपी देना पड़ेगा गाइज, इस राउटर का आईपी देना पड़ेगा 10.10.10.1। सो जब भी इस क्लाइंट, जब ये हमारा जो बेंगलोर का पीपल है, ये क्लाइंट जब भी डीएचसीपी का रिक्वेस्ट करेगा, तो यहाँ पर आएगा हमारे एज ए गेटवे राउटर के पास, और ये जो हेल्पर एड्रेस में जो हमने आईपी डिफाइन किया है वो रिक्वेस्ट एज यूनिक उसको भेज देगा, एंड देन ये जो डीएचसीपी सर्वर है इसको रिप्लाई करेगा, एंड देन इट विल गिव बैक टू द दिस क्लाइंट। सो आई नो, I hope everybody, I know, I hope like everybody has clear this concept, right? सबको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, तो हम R2 पर आते हैं गाइज, एंड R2 पर आते हैं, एंड आर द इंटरफेस 0/1। सो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाने का गाइज, इंटरफेस आशीसनेट 0/1 एंड आईपी हेल्पर एड्रेस, ये कमांड आपको रन करना, आईपी हेल्पर एड्रेस, एंड व्हाट इज द आईपी 10.10.10.1, 10.10.10.1। दैट्स इट गाइस। ओके, सो हमारे पहला पार्ट था कि रीचेबिलिटी हो गाइस। पहला ये अपना क्या था यहाँ पर, रीचेबिलिटी होना चाहिए। हमने रीचेबिलिटी हमारे दोनों राउटर के बीच में हमने पूल बना लिया, अब हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए इस पीसी पर आना आपको, एंड देन विल ट्राई टू नो टेक द आईपी फ्रॉम डीसीपी। लेट्स सी if everything is good, it will get it. So I'm just going to disable it, and then I will try to enable it. So
परफेक्ट। एंड यहाँ अगर हम स्टेटस में आते हैं गाइज और डिटेल्स में आते हैं तो इसको देखो आईपी कहाँ से मिल गया, डीएचसीपी सर्वर से आईपी मिल गया। एंड व्हाट इज द आईपी, 172.16.1.1। दिस इज द सबनेट मास्क, दिस इज द डिफॉल्ट गेटवे जो हमने कॉन्फ़िगर किया था। दिस इज डीएचसीपी सर्वर आईपी एड्रेस, और हमने ये जो कॉन्फ़िगर किया था उस पूल में कि डीएनएस सर्वर मिलना चाहिए, वो मिल गया। ओके, परफेक्ट। एंड इस चीज़ को हम यहाँ पर कैप्चर भी करके देख सकते हैं गाइज, इफ यू वांट टू कैप्चर इट। आई थिंक इट इज 0/0। नो प्रॉब्लम, एक काम करते हैं गाइज, यहाँ से आकर के इस पीसी में I will try to just disable this and again enable this. ओके गाइज, देखो जैसे मैंने इनेबल डिसेबल किया तो देखो हाउ डीएससीपी वर्क। तो मुझे इतना पता है कि डीएससीपी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन वन ऑफ माई सेशन। सो वहाँ से आप जा करके चीज़ें देख सकते हो। ओके, I want to see one more thing here, just 1 minute. Let me capture here also. 0/1 capture. Let me just disable this and again enable this. ओके गाइस, सो दिस इज द कंसेप्ट फॉर डीसीपी रिले एजेंट। सो जो हमारा डीसीपी रिले एजेंट का जो प्रोसेस है गाइस, जब यहाँ से जब रिक्वेस्ट जाता है इस राउटर से, ये यूनिकास्ट जाएगा। एंड देन डीसीपी सर्वर इज गोइंग टू गेट रिप्लाई टू दिस राउटर एंड इट विल गिव रिप्लाई बैक टू दिस क्लाइंट, क्योंकि ये क्लाइंट ने डीसीपी रिक्वेस्ट किया था। ओके, सो आई होप दिस वीडियो हैज बीन इंफॉर्मेटिव फॉर एवरीबॉडी गाइस। If you like these efforts, please share, like, subscribe my channel as much as possible. अपने सर्कल में शेयर करो, नीडेड पीपल को शेयर करो। एंड आई होप कि कंसेप्ट क्लियर होगा कि हाउ डीएससीपी रिले एजेंट एंड हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर इन द प्रोडक्शंस। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट सेशंस फॉर some new topics.